أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سسٹرز، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اردو بیسک کلاس میں ہم نے حرف دیکھی، حرف تہجی کو دیکھا، الف سے لے کے یا تک حرف تہجی دیکھی، ہاں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حرف تہجی کے حرف اور ان کا ساؤنڈ ہے نا، ان کا پروننسیشن کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم نیو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا زیر زبر اور پیش، ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے نا۔ تو زیر زبر پیش پہلے دیکھیں اب کیسے ہوتا ہے کہ اردو میں پہلے تو آپ نے ایک بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اردو میں زیر زبر پیش کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا بیسک چل رہا ہے اس لیے آپ کو یہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے نا، جب بھی ہم لکھتے ہیں بیسک میں تبھی آپ کو یہ پریکٹس کرائی جاتی۔ جیسے جیسے ہم ایڈوانس کی طرف پڑھتے ہیں زیر زبر پیش یعنی کہ اعراب یہ کم کم ہوتے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، مگر وہ لگتے ہیں، مگر لکھائی نہیں لکھنے کا فارمیٹ نہیں ہوتا ہے، مگر پڑھنا ہوتا ہے اسے، یہ آگے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو اب پہلے دیکھتے ہیں زیر زبر پیش کو ہم کیسے ادا کریں گے۔ تو دیکھیں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، زبر کسی بھی لیٹر پر اگر زبر ہوگا تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا، کسی بھی لیٹر، یہ لکیر مینس آپ نے لیٹر سمجھو، کوئی بھی حروف ہے سمجھو، کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر ہوگا تو اس کا ساؤنڈ کس طریقے سے ہم ادا کریں گے اس کی آواز، اور کسی بھی لیٹر پر کسی بھی حروف پر اگر پیش ہوگا تو اس کی آواز کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھیں ہر لیٹر میں ہے نا جب بھی زبر ہوتا ہے تو اس کا ساؤنڈ الف کی طرح آئے گا، اور ایک الف، ہاں، اگر الف ہے تو اور ایک الف، اگر الف پر زبر آتا ہے تو دو الف کا آواز آئے گا، دو الف کا ساؤنڈ آئے گا، اور بے ہے تو اس میں ب، دیکھیں اگر بے ہے، ہاں، بے زبر، بے زبر ب، ہاں تو ب ساؤنڈ آئے گا، جیم زبر ج، تو یہ ہندی والا جو ہوتا ہے وہ ساؤنڈ آئے گا الف کا، مطلب زبر کا، یہ جو زبر ہے نا تو آ نہیں، یہ کا ساؤنڈ آئے گا، ہاں یہ ایسے تو جس بھی حرف پر زبر آئے گا تو اس حرف کے ساؤنڈ میں آپ کا ساؤنڈ ملانا ہے، ہاں تو پھر دیکھیں زیر کا کیا ہوگا، زیر کیا ہوتا ہے، ای ساؤنڈ آتا ہے، ای، جو حرف تہجی میں ای ہوتا ہے نا یہ ساؤنڈ لیتے ہیں۔ تو جس بھی حروف کے نیچے زیر ہوگا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ای کا ساؤنڈ، ای کا ساؤنڈ مکس کرنا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں کہ جیم، یہ جیم ہے آپ کا لیٹر سمجھے، یہ جیم، ہاں جیم زیر جی، ای لیٹر ملایا میں نے، دیکھیے ای ساؤنڈ ملایا جیم کے ساؤنڈ میں، جیم کا ساؤنڈ کیا ہے ج، اور اس میں ای کا ساؤنڈ ملانا تو کیا ہوگا جی، اس طریقے سے۔ تو یاد رکھنا ان شارٹ میں کہ زیر ہوگا تو آپ نے یہ والا ای کا ساؤنڈ ملانا ہے، اور زبر ہوگا تو یہ والا کا ساؤنڈ ملانا ہے، اور اب پیش کی باری کہ اگر کسی بھی لیٹر پر پیش ہوگا تو واو کا ساؤنڈ ملانا ہے، واو، تو او، تو جیسے میم پیش مو، م اور واو مو، رے پیش رو، کاف پیش کو، اس طرح او، ہاں تو یہ والا او والا ساؤنڈ ملے گا، تو اتنا یاد رکھنا ہے۔ چلو میں اور ایک دفعہ سمجھا دیتی ہوں، دھیان سے دیکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے مطلب آپ کو کیا کرنا ہے، جو حرف تہجی ہے ہمارے حرف تہجی کا جو ساؤنڈ دے کے ہمیں ہے نا، پچھلی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا، پچھلی کلاس میں کہ الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک جو حرف تہجی ہے ان کے ساؤنڈ دیکھیے۔ اب زیر زبر پیش میں کیا کرنا ہے، اگر زبر ہوتا ہے کسی لیٹر پر تو آپ نے کیا کرنا ہے، کا ساؤنڈ ملانا ہے، اور اس کو اردو میں دیکھے تو الف کا ساؤنڈ کہنا ہے۔ پھر اگر کسی لیٹر پر زیر ہے، کسی لیٹر کے نیچے، تو ای کا ساؤنڈ ملانا ہے اپنے، تو ای مینس کیا، یہ والی ای ساؤنڈ، یہ اردو میں یاد رکھنے کے لیے آپ یہاں دیکھیں گے، ہاں، اور ہندی میں یاد رکھنے کے لیے یہاں دیکھیں گے۔ اور کسی لیٹر پر اگر سب پیش آتا ہے کسی لیٹر پر تو یہ او کا ساؤنڈ ملانا ہے اپنے اس میں، او،
ये ऊ यानी क्या कि वाव का साउंड मिलाना है। हाँ, तो ऐसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखिए, अब इसकी मशक करेंगे। पहले तो याद रखना है, अगर जबर है तो अ का साउंड आएगा, यानी कि अलिफ। अगर अलिफ पर जबर आता है तो दो अलिफ का साउंड निकलेगा, है ना। अलिफ पर अगर जबर आता है तो दो अलिफ आ हो जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर जीम पर है, तो अगर जीम पर है जीम जबर ज, है ना। काफ पर है काफ जबर क, इस तरीके से। अभी जेर का देखिए, जेर जेर यानी क्या आपने याद रखना है, ये वाला ई का साउंड मिलाना है। जिस भी हुरूफ के नीचे जेर होगा उसमें आपने ये वाला ई का साउंड मिलाना है। उस साउंड में। तो शीन जेर शी, रे जेर री, वाव जेर वी, इस तरीके से। और जिस भी हुरूफ पर पेश होगा तो इस पे ऊ का साउंड आपने मिलाना है। जैसे टे पेश टू, या टे पेश टू, वाव पेश ऊ, रे पेश रू, ऊ साउंड मिलाएंगे। ओके, आपने याद रखना है, ये हिंट है। क्यों, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रिक से सीख रहे हैं, है ना। तो ये आइडिया है कि आपने याद रखना है। ये लेटर ये छोटा सा है ना, कॉलम आपके नोटबुक में आपने कहीं नोट कर रखना है। फिर आपको जब कंफ्यूजन हो ना, तो आप निकाल कर देख सकते हैं कि जबर में किसका साउंड निकालना है, मुझे किसका मिक्स करना है। जेर होगा तो मैंने उस हुरूफ के साउंड में कौन सा साउंड मिक्स करना है, और अगर पेश होगा तो मुझे कैसे उसमें वाव का साउंड मिक्सअप करना है, इस तरीके से। ये इतना चार्ट अपने नोट डाउन करना है, मैं होमवर्क ग्रुप पर भी आपको भेज दूंगी। अब यहाँ पर हम इसकी चंद मिसालें देखते हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। फिर इसमें भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्लास पीरियड में पूछ सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जबर की, आपको जबर के एग्जाम्पल दिए गए। पे जबर प, ड़े जबर ड़, बे जबर ब, हीम जबर च, काफ जबर क, हाँ, ये गठरी वाली हा जबर ह, ये गाफ जबर ग, ये या ई, छोटा ई जबर य। अब ये देखिए, ये भी जबर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, दाल जबर ड, है ना, अ साउंड मिल रहा है। आप मेरी आवाज को पहचाने, उसमें थोड़ा सा फर्क वाजे करे। दाल जबर ड, साउंड, रे जबर र, है ना, साउंड आ रहा है क्या। लाम जबर ल, गाफ जबर ग, हाँ, है जबर ह, कौफ जबर क, ये साउंड आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, तो जबर, अगर जबर होगा तो एंड में आपको क्या करना है, का साउंड आना है। हाँ, का साउंड आएगा। और ये टे जबर ट, इस तरीके से। हम्म, अब देखते हैं हम ई, यानी क्या, जेर। अब देखते हैं जेर का। जेर का किस तरीके से होगा। तो देखिए, जेर का क्या होगा, ई का साउंड मिलाना है। जेर में हमने क्या करना है, ई का साउंड, हुरूफ में ई का साउंड मिक्सअप हो जाएगा। अब देखिए, गाफ जेर गी, रे जेर री, मीम जेर मी, लाम जेर ली, ई जो हुर्फ है उसके एंड में हमारा साउंड ई आ रहा है, ई। ये देखिए, काफ जेर की, क का साउंड क, और उसके नीचे हम ई मिला रहे हैं क्यों, तो जेर है तो की। सीन जेर सी, नून जेर नी, जीम जेर जी, इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने, मैंने अभी जो आपको चार्ट बताया था वो नोट डाउन करना है, उसको याद रखना है। दो तीन दफा आप ध्यान से देखेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखते हैं वाव, मीन्स क्या, पेश वाले एग्जाम्पल देखेंगे कि पेश को किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, बे पेश बू, लाम पेश लू, वाव पेश अलिफ पेश ऊ, रे पेश रू, ते पेश तू, मीम पेश मू, रे पेश रू, और काफ पेश कु, इस तरीके से। तो ऊ साउंड एंडिंग को आ रहा है। हाँ, तो किस में आ रहा है, पेश में। और जेर में ई साउंड आएगा जेर में। उसी तरीके से जबर में साउंड आ रहा है। तो इतना याद रखना है, अगर आपके जहन में ये बैठ गया तो आपको जेर जबर पेश, है ना, ये पढ़ने में इजी हो जाएगा। आपने बिल्कुल, फिर आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, सिंपल है। आपने क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको चार्ट बताया इस तरीके से नोट डाउन करके रखना है, और पढ़ने की कोशिश करना है। और देखिए, ये मश्क आपने भरपूर करना है। हाँ, तो देखिए, अभी ये काफ, हाँ, अभी मैं काफ का एग्जांपल लेके तीनों देखेंगे हम। जबर, हाँ, जबर, फिर जेर, और फिर पेश। हाँ, देखिए साउंड किस तरीका, लेटर वही है हमारा, हुर्फ वही रहेगा। और सिर्फ बदलेगा जेर जबर और पेश। अभी काफ पर मैं क्या करती हूँ, पहले जबर लगाती हूँ। काफ जबर क, आ गया अ का साउंड। काफ जेर की, ई का साउंड आ गया। काफ पेश कु, है ना, वाव का साउंड आ गया। का की कु, का की कु, इस तरीके से। लाम लो आप, लाम जबर ल, जबर लगाया ल,
लाम जेर ली, लाम पेश लू, ल ली लू, इस तरीके से। अब देखिए शीन ले, हाँ शीन, तो शीन जबर श, शीन जेर शी, शीन पे शू। तो याद रखना है इन शॉर्ट कि जबर होगा तो अ आएगा, जेर होगा तो ई आएगा, ये हिंदी वाला, और पेश होगा तो ऊ आएगा। अभी कुछ सिस्टर देखे हमारे मुझे मैसेज आया था कि वो मतलब हिंदी नहीं जानते, तो मैं उनको रोमन इंग्लिश वाला भेज दूंगी चार्ट, हाँ इंशाल्लाह। तो याद रखना है ये जैसे हुर्फ तहजी मतलब अंग्रेजी में होते हैं ना वावेल्स, तो उस तरीके से है कि साउंड को देखिए उर्दू में है ना, जेर जबर पेश पर ही क्या होता है, ये साउंड निकलते हैं। ये तीनों लेटर से, जैसे कि देखिए अलीफ, ई, और ये वाव। तो ये हो गया हिंदी का, आपने ऐसे याद रखना है और इसको आप अंग्रेजी में बोले ना, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ए का साउंड, और इसको ई। तो इसको आप ई मीन्स के आप छोटा वाला इंग्लिश का है ना, ये ई से याद रखे ई, और ये वाव है ना, इसको ओ से याद रखे। अगर आपको याद रखना है ना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमें सिर्फ ये क्या है कि पैटर्न याद रखना है कि अगर अलिफ जबर होता है, जबर होता है तो हम अलिफ का साउंड निकालेंगे, या हिंदी के ए का का साउंड निकालेंगे, या अंग्रेजी के ए का साउंड निकालेंगे। अगर जेर होता है तो हम ये उर्दू की ई का साउंड निकालेंगे, हाँ ई का साउंड निकालेंगे। और ये इंग्लिश की ई का साउंड ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये ट्रिक है, हाँ जिसको उर्दू और हिंदी नहीं आती ना वो इस तरीके से भी याद रख सकती है। अगर जेर होगा तो आपने कहना है कि ये एलिफेंट वाला ई याद रखेंगे, और हिंदी वाले तो ये ई समझ ही आ जाएगा। और वाव का साउंड होगा वाव, तो वाव का साउंड होगा तो ये ओ, हाँ इंग्लिश वाले क्या करेंगे, जिसको इंग्लिश आती है ना तो वो ओ का साउंड याद रखेंगे, वो, हाँ। और जो हिंदी आता है ना उसको, तो वो ये ओ से याद रख सकते हैं, हाँ। ये जोर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सिंपल वाला, हाँ इस तरीके से। चलिए थोड़े से और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, देखिए सिर्फ क्या करना है हमें कि अलिफ किसी भी लेटर को लेकर देखना है, आपने ऐसी मश्क करना है। देखिए जब क्लास के एंड में बाद में आप होमवर्क जब करने बैठ जाएंगे तो आपने कोई भी लेटर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये गाफ लो, गाफ पर जबर लगाकर एक बार पढ़ना है, गाफ जबर ग, गाफ जेर गी, गाफ पेश गू, रे, रे पेश रू, रे जेर री, रे जबर र, इस तरीके से। स्वाद, स्वाद जबर स, स्वाद जेर सी, स्वाद पेश सु। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसकी मशक करनी है, जेर जबर पेश। और पहले तो आपने प्रैक्टिस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हुर्फ तहजी की, आपको जो हुर्फ तहजी है अलिफ से लेकर या तक, ये पूरे हुर्फ जिस तरीके से देखिए सीक्वेंस से तो हम पढ़ लेते हैं, अलीफ बे ते से, हाँ जीम। फिर हुरूफ की शनाख्त हो गई या नहीं, ये आपने खुद ने कैसे चेक करना है, बड़ा ई से पढ़ना स्टार्ट करना है, बड़ा ई छोटा ई, इस तरीके से बैक 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 जाकर देखना है। अगर जिस स्पीड से आप ये फ्रंट से पढ़ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उसी स्पीड से अगर आपको नाम याद आ रहे हैं बैक से, तो समझना अब आपने प्रैक्टिस बंद करनी है, तब तक आपने इसकी मश्क करनी है, हाँ। जैसे स्टार्टिंग से पढ़ने की स्पीड होती है, उसी स्पीड से आपने बैक से पढ़ना है, देखकर, हाँ देखकर। मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बगैर देखे पढ़ना है, देखकर। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी हुरूफ की शनाख्त होगी। वो होने के बाद सेकंड काम क्या है आपका, कि आपने साउंड याद करने हैं। जैसे कि देखिए मैंने साउंड का क्या कहा था कि हुर्फ तहजी में कैसा है कि ये बे, हाँ बे, इसका नाम बे है, हाँ, मगर इसका साउंड क्या है ब, ये, हाँ ब। नाम क्या है, नाम और साउंड में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, वो याद रखना जरूरी है। अब क्यों याद रखना जरूरी है कि जब आप हुरूफ बनाएंगे, सॉरी लफ्ज बनाएंगे है ना, हुर्फों को मिलाकर, हाँ लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे, तब वहां आपने उनके नाम नहीं लेना होते हैं, तब वहां आपने उनके साउंड लेना होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ सिंपल सा, अ द ब। देखिए अब मैं जब पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो मैं अलीफ दाल बे, तो मिलाना मुश्किल होता है और मिला नहीं सकते, तो हमें उनके नाम न लेते हुए हमें क्या करना है, उनके साउंड लेने हैं। जैसे अलीफ का साउंड अ, दाल का साउंड द, हाँ बे का साउंड ब, अ द ब। तो ये इजी हो जाता है, इससे हम जो है राइटिंग भी फास्ट कर सकते हैं और रीडिंग भी फास्ट कर सकते हैं, और हम बगैर देखे का लिख भी सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने
हुरूफ की शनाख्त और हुरूफ के साउंड ये पक्के करना है। हाँ, ये दो काम। देखिए अभी तक की जो हमारे क्लासेस हुए उसमें हमने दो काम पर भरपूर मशक करनी है। पहले तो हुरूफ की शनाख्त आपको जरूरी है कि अगर किसी भी लेटर को आप किसी भी हुरूफ को देखते हैं तो फास्ट क्विक आपके माइंड में उसका नाम आना चाहिए। पहली बात ये। और जब ये आपका पक्का होता है तो सेकंड काम क्या है आपका दूसरा, कि उसका साउंड आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे मीम, ये नाम है मीम, मगर इसका साउंड सिर्फ म लेना है इसका साउंड। जैसे कि ये हिंदी वाला, हाँ म। हाँ, तो ये म आपके माइंड में फास्ट आना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, हुरूफ से हुरूफ को मिलाकर लफ्ज बना सकते हैं। हाँ, तो ये नाम आना फास्ट है। ऐसे नाम की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो हुरूफ की शनाख्त करनी है, फिर नाम की प्रैक्टिस। और तीसरा अब आपका काम क्या है कि आपने जेर जबर और पेश लगाकर इनकी सभी की मशक करनी है। हाँ, इतने पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर इंशाल्लाह आपका पक्का हो जाएगा। हाँ, फिर अभी जिसको भी जो दिक्कत है आप क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही काफी। हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपको